Hello guys, welcome back once again in my channel. We'll see non-profit organization. We are going to take one sum, that is sum number 4 from government textbook. From the following transactions of receipts and payment account of Satara Sports Club, Satara, and adjustments given below. Adjustments given, you are required to prepare income and expenditure account. This balance sheet you don't have to prepare. I'll remove it. In this sum there is no balance sheet, only you are having income and expenditure account. So this is the date 31st March 2019. Receipts and payments are given. Okay, these are the payments. So payments will be recorded either in liability side. It is recorded either in liability side or expenditure side. Hmm. And receipts are recorded in income side. Okay. बैलेंस कैरिड डाउन का कुछ भी नहीं करना है, ये ओपनिंग बैलेंस है. इट इज नेवर रिकॉर्डेड. देन सब्सक्रिप्शन. व्हाट इज सब्सक्रिप्शन? इट इज लाइक मेंबरशिप फीस व्हाट इज पेड टू द ऑर्गेनाइजेशन एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग. तो 17-18 का टोटल इतना मेंबरशिप फीस रिसीव हुआ है, उसमें से 4000 कभी का है, 17-18 का. 17-18 ये है हमारा लास्ट ईयर. कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? देखो यहाँ पे 2019 है ना, तो ये बिगिनिंग कभी हुआ रहेगा 2018 को. मतलब ये देखो, ये आपका करंट ईयर है. कहाँ से मालूम पड़ा हमको? यहाँ से मालूम पड़ा. और ये लास्ट ईयर है, ये करंट ईयर, और ये क्या है, नेक्स्ट ईयर है. आप खुद ही देख लो कैसे नेक्स्ट ईयर है. आई विल राइट नेक्स्ट ईयर के लिए NY. ओके. सो लास्ट ईयर का 4000 आया है, करंट ईयर का भी 44,500 आया है, और नेक्स्ट ईयर का भी 3,500 आया है. तो हमको ये लास्ट ईयर का जो आया ना, उससे कुछ लेना देना नहीं है, बिकॉज ये लास्ट ईयर का आया है. करंट ईयर में हमको सिर्फ करंट ईयर का आइटम लेना है, और इसका भी कुछ करना नहीं है. ये वैसे बैलेंस शीट में जाता है, और हम लोग बैलेंस शीट तो बना नहीं रहे, तो आपको सिर्फ यही लेना है 44,500. एंट्रेंस फीस इज देयर. डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, इट विल गो टू liability side. बिल्डिंग फंड टाइप का कुछ भी आया ना, that will go to liability side. Then we are having interest, sale of furniture, adjustment is there, I'll explain you afterward. Then expenditure side, salaries, रेंट के ऊपर भी एडजस्टमेंट है, I'll explain you afterwards. Electricity charges, fixed deposit, this will go to asset side, but we have not prepared balance sheet, so we won't do anything with this. Printing and stationery, general expenses, hidden adjustment is there. स्पोर्ट्स मटेरियल, ये तो काफ़ी बड़ा एडजस्टमेंट और इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट है. दिस इज दिस इज कैश इन बैंक 25,000. तो ये भी बैलेंस शीट में ही रिकॉर्ड होता है, बट सिंस वी हैव नॉट प्रिपेयर्ड बैलेंस शीट, वी वोंट डू एनीथिंग विद दिस. Okay, adjustment is there. Outstanding subscription for current year, so we'll put a tick on subscription, so that we can leave some lines and can record this amount in inner column. Then रेंट के ऊपर भी एडजस्टमेंट है, we'll put tick here too. Entrance fees is to be treated as revenue income, that means you have to take entrance fees as revenue, मतलब income में ही रखना है. Then stock of sports material, we are having adjustment on this. Okay, so ये 6,000 है, 14,000 है. ठीक है. Then now I'll show you format क्या होता है income and expenditure का. See, this is the format of income and expenditure account in the books of Satara Sports Club, Satara. Income and expenditure account for the year ending 31st March 2019. This is expenditure side and this is income side.
और ये है बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट तो हम लोग बना नहीं रहे हैं, सो वी वोंट डू एनीथिंग विद दिस। तो स्टार्ट करते हैं सब्सक्रिप्शन से। करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन इज 44,500। ये रिकॉर्ड होगा इनकम में बाय सब्सक्रिप्शन। इनर कॉलम में रिकॉर्ड होगा बिकॉज एडजस्टमेंट इज देयर। Then we won't do anything with this. Entrance fees 8,000. No adjustment, so it will be recorded in outer column. By 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 entrance fees 8,000 outer column because no adjustment is there. Donation for building fund नहीं है. Interest 600 by interest 600. Then sale of furniture. ओके इसका देखो मैं आपको वर्किंग शो करता हूँ सेल ऑफ फर्नीचर का. ये क्या है? बुक वैल्यू ₹8,000. तो फर्नीचर को आपने सेल किया 4,500 में, इसका बुक वैल्यू था 8,000. तो देखो बुक वैल्यू was ₹8,000 एंड सोल्ड फॉर कितने का सेल किया? 4,500 का. अब बैलेंस क्या होगा आपका? लॉस होगा. क्यों?
मार्च 2019 यहाँ पे भी हमको डेट से मालूम पड़ा कि ये क्लोजिंग बैलेंस है। CL मीन्स क्लोजिंग बैलेंस। ओके, सो ओपनिंग बैलेंस कितना है 6000, क्लोजिंग बैलेंस है स्पोर्ट्स मटेरियल का 14000। ओपनिंग बैलेंस कितना है 6000, क्लोजिंग बैलेंस कितना है 14000। ओके, इसका टोटल कितना हो गया 46000। 46000 माइनस 14000, 46000 minus 14,000, this is 32,000। ओके, डन। इसका सेकेंड इफेक्ट देना होता है बट बैलेंस शीट नहीं बनाया है तो सेकेंड इफेक्ट हम लोग इग्नोर करेंगे। नाउ विल मेक द टोटल ऑफ बोथ दिस साइड, विल सी विच साइड इज हायर। दिस साइड इज दिस साइड इज 51,700 एंड दिस साइड टोटल इज ये है आपका 63,000। चेक कर लेते हैं हम लोग ये जरा, ये दोनों। एंट्रेंस फीस 8,000 है। इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट 600 है, सो इट शुड बी 600। ओके, ठीक है। सो नाउ इट विल बी करेक्ट 57,600, 57,600। विच साइड इज हायर, क्रेडिट साइड इज हायर राइट, इनकम साइड हायर है। So that amount, higher amount will be written on both the side like this, the way I am recording 57,600। अब this side is less right, तो हम लोग डिफरेंस निकालेंगे 57,600 माइनस 51,700 राइट। ये वाला अमाउंट लेंगे लोअर वाला, तो बैलेंस कितना आता है 55,900। अब इनकम साइड हायर है तो ये जो है ना 5,900 वो हो जाएगा हमारा सरप्लस। हाँ, तो नीचे लिखेंगे ब्रैकेट में एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो ये हो गया है हमारा, दिस इज सरप्लस and this is the total of both the side and we don't need this now। okay, so in this way we have done this sum